Hello guys. Adverb is another important topic which falls within the broad classification of the parts of speech. Okay, so today we are going to do the adverb. What is an adverb? It is a word that modifies an adjective or a verb or an adverb itself. Modifies means it enhances or adds something to the meaning of the verb that it attaches or the adjective, right? You see here, so Ram runs quickly. So here Ram is running, and how is Ram running? He is running quickly. So this word is modifying the verb runs. Okay. This is a very sweet mango, right? So this is a sweet mango, but यहाँ पे हमने लिखा very sweet. तो हमने इस adjective, जो sweet is an adjective because it is adding something to the meaning of noun mango. और यहाँ पे very जो है वो इस adjective को और ज्यादा modify कर रहा है, कह रहा है very sweet. So this is a verb. Govind reads quite clearly. यहाँ पे Govind reads clearly is okay, right? क्योंकि Govind reads verb हो गया और clearly जो है वो इस verb को qualify कर रहा है, पर very quiet जो है वो इस clearly को भी qualify कर रहा है. यानी इस adverb को quiet qualify कर रहा है. So quiet is also an adverb which qualifies another adverb. ठीक है. Now we'll see the kinds of adverbs, right? So adverb of time. Adverb of time हमारे को सेंटेंस में कुछ बताते हैं, किसी तरफ इशारा करते हैं. वो क्या है कि when कुछ घटना हो रही है या कुछ verb या adjective कुछ कर रहा है तो वो कब कर रहा है, when. That is why it is called the adverbs of time. ठीक. I have heard this before. तो यहां पे ये क्या बता रहा है? Before, पहले मैंने ये सुना था, right? I have heard this before. That day he arrived late. When did he arrive? That day? Late. तो ये इस when क्वेश्चन को यहां पे आंसर कर रहा है. We shall now begin to work. तो हम इस सेंटेंस में अगर पूछे कि when begin to work, तो हमारा आंसर होगा now, right? तो ये now जो एडवर्ब है वो बता रहा है कि हम अभी काम करना शुरू करेंगे. It is qualifying an adjective and a verb, right? So but it is also telling when. तो ये adverb of time हो गया. उसी प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. We arrived a few minutes ago. पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा है, यानी सिंपल पास्ट में. We arrived a few minutes before. हम आ चुके हैं, arrived हो चुके हैं. I had a letter from him lately. The end soon came. Right? Soon came. Right? When did the end came? Soon. So adverb of time. Wasted time never returns. Does it returns? No, it never. He once met me in Delhi. I have not seen him since. So ये है सब adverb of time. अगला हम देखेंगे adverbs of frequency.
एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है, रोज हो रहा है, हफ्ते में एक बार हो रहा है, या हर घंटे हो रहा है. सो फ्रीक्वेंसी इज कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है. आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, राइट, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस. तो यहां पे ये बता रहा है कि 2 बार बता चुके हैं. तो दिस इज एन एडवर्ब एंड इट इज टेलिंग द फ्रीक्वेंसी. I have not seen him once, right? So not seen हमारा वर्ब हो गया और उसको ये डिफाइन कर रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि एक बार भी नहीं मिले. तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. He often makes mistake, right? Adverb of frequency. He seldom, कभी कभी, comes here. He always tries, right? Adverb है हमारा, ये तो हमें समझ में आ गया क्योंकि ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. किस वर्ब को कर रहा है, इसको कर रहा है. लेकिन ये एडवर्ब कौन सा है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया. He frequently comes unprepared, right? Adverbs of place, which shows, कौन सा क्वेश्चन आंसर करते हैं, अगर हम सेंटेंस में वेयर पूछेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस का. ठीक है. स्टैंड वेयर, हियर. गो वेयर, देयर. The little lamb followed Mary where? Everywhere. He looked up. Where did he look? Up. My brother is out. Is Mr. Das within? Where is Mr. Das? Is he within? Come in. The horse galloped away. Adverbs of manner. किस मैनर में, मतलब वो एडवर्ब बताएगा कि वर्ब किस, व्हाट इज द मैनर ऑफ द वर्ब और एडजेक्टिव, राइट. लाइक गोविंद रीड्स क्लियरली. क्या मैनर है उसका, पढ़ने का तरीका क्या है, वो साफ पढ़ता है. ही रीड्स क्लियरली. सो क्लियरली एज एन एडवर्ब इज defining the verb reads, but how is it defining? ये उसका मैनर बता रहा है, right? The 6 fought, कैसे लड़े, how did they fight? They fought bravely. What was the manner? किस तरीके से लड़े, bravely, right? The child slept soundly. So इन सारे में हम देखेंगे जितने भी एडवर्ब्स यूज किए गए हैं वो बताते हैं, they are qualifying the manner in the sentence, tarika. Okay. And also this class includes nearly, not all, absolutely all, but nearly all the adverbs जो कि ly में end करते हैं. हम generally देखेंगे. Clearly, ly. Bravely, soundly, right? So in these, in the adjective of manner, the adverbs usually end in ly. Adverb of degree, कितने डिग्री में है, बहुत है, बहुत कम है, थोड़ा ज्यादा है. सो ये डिग्री बताता है. He was too careless. He was careless तो था, लेकिन अब हमने टू लगा दिया कि बहुत केयरलेस है, तो वो उसकी डिग्री बताता है, राइट. इज दैट एनी बेटर, क्या वो अच्छा है या वो जरा भी अच्छा है. दीज मैंगोज आर
ऑलमोस्ट राइट, बस तैयार हो गए हैं। तो डिग्री, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, यू आर क्वाइट रॉन्ग, द सी इज वेरी स्टॉर्मी, वेरी क्या डिग्री बता रहा है? बहुत स्टॉर्मी, बहुत तूफानी, राइट? सो ऑल दीज in all these sentences the adverbs will show you the degree. Right? The adverbs of affirmation and negation. Affirmation मतलब positive, negation means negative. Surely you are mistaken. तो एक affirmation हो रहा है कि बिल्कुल सही बात है, but you are mistaken. He certainly went, बिल्कुल गया, तो एक affirmation है, मतलब पक्का, पक्की बात है. I do not know, एक नेगेशन है, नेगेटिव, मुझे नहीं पता, डू नॉट नो. एडवर्ब्स ऑफ रीजन क्या है? ही इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्जेस, मतलब कुछ वजह है कि वो अब अपने लगाए हुए इल्जाम को हेंस वो उनको मना नहीं कर सकता, राइट? ही देयरफॉर समथिंग हैपेंड, और उसकी वजह से दे ही देयरफॉर लेफ्ट, वर्ब हो गया, तो ये देयरफॉर लेफ्ट स्कूल. ओके, here we see that some of the adverbs may belong to more than one class. She sings delightfully, right? तो यहां पे delightfully क्या है? तरीका, adverb of manner. The weather is delightfully cool. यहां पे क्या हो गया? डिग्री हो गया. कितना कूल है? It's delightfully cool. Don't go far. यहां पे far क्या है? Adverb of place हो गया, ठीक है? He is far better than now. Adverb of degree हो गया. तो यहां पे हम देखते हैं कि हम दो verbs लेते हैं, एक sing लेते हैं, एक far लेते हैं. सिंग को दो सेंटेंसेस में अलग अलग यूज करते हैं और देखते हैं यहां एक जगह वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, दूसरी जगह वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है. फिर उसी प्रकार से हम फार लेते हैं दोनों सेंटेंस में, हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्यों बता रहा है कहां है? फार. और यहां पे ये एक डिग्री बता रहा है कंपैरिजन में, राइट? अब हम देखेंगे कि एडवर्ब्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए सेंटेंस में. अक्सर हम देखते हैं कि अगर हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनकी पोजीशनिंग अगर सही नहीं है तो वो मतलब सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है. तो यहां पे हम एक देखेंगे कि तरीके समझेंगे कि कैसे हम अपने एडवर्ब को सही पोजीशन पे रखें ताकि हमारा सेंटेंस करेक्ट हो, या अगर इनकरेक्ट पड़ा हुआ तो वी कैन फाइंड आउट दैट बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ एडवर्ब इज नॉट इन द राइट प्लेस, तो वो सेंटेंस रॉन्ग है. ओके, सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ठीक है. सो हम देखते हैं कि ये जो मैनर की बात हम कर रहे थे, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, ही इज अ टॉल पर्सन, या मतलब हैंडसमली टॉल, तो ये हम सारी चीज देखते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर विल जनरली कम आफ्टर द वर्ब, देन एडवर्ब, ठीक है. तो हमने देखा कि जितने भी एडवर्ब्स ऑफ मैनर है सेंटेंस में वो वर्ब के बाद प्लेस होते हैं. नॉट एवरी टाइम बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम.
द शिप इज गोइंग, वर्ब हो गया, स्लोली, एडवर्ब ऑफ मैनर। शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, स्पीक हो गया हमारा वर्ब, स्पीक्स इंग्लिश वेल, ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ही डज हिज वर्क केयरफुली, राइट। तो ये हम पॉइंट नोट कर लें कि हमारा जब एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो इस सेंटेंस में दे कम आफ्टर द वर्ब। एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस, ठीक है, जो प्लेस, हियर, देयर, एवरीवेयर, दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन। कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद होगा, या वो भी वर्ब के बाद में। एडवर्ब ऑफ प्लेस आर ऑल्सो प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब इन द सेंटेंस। ही विल कम हियर, यहां आएगा, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, लेकिन वो वर्ब के बाद में आ रहा है। आई लुक एवरीवेयर, हैंग द पिक्चर देयर, आई मेट हिम yesterday. So adverb of manner or adverb of place, they usually come, or we can say most of the time they come after the verb. Okay, when there are two or more adverbs after a verb, the normal order is, this is important, please note it, that the adverb of manner, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम का सीक्वेंस बनेगा। अगर एक वर्ब के बाद दो या उससे ज्यादा एडवर्ब्स आते हैं उसको डिफाइन करने, तो हमारा ये एमपीटी का रूल लगेगा। सबसे पहले लगेगा एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकंड लगेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, और थर्ड लगेगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, वील सी हियर, शी sang well in the concert, तो ये हमारा वर्ब हो गया, राइट। ये क्या हो गया, वेल, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, वेल इन द कॉन्सर्ट, ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हमारा ये वाला रूल फॉलो किया। टाइम नहीं है इसमें, इस सेंटेंस में टाइम नहीं है, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, बट ये रूल हम फॉलो कर रहे हैं। पहले हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, सेकंड में हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। शी sang well, कहां पे, हम ये नहीं कहेंगे शी sang इन द कॉन्सर्ट वेल, तो वो गलत हो जाएगा। वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग, ठीक, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। We should go there, there मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक, और ये हो गया टुमारो इवनिंग हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। सो एमपीटी रूल, इसमें दो ही एडवर्ब्स हैं, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है और टाइम है, तो पहले प्लेस आएगा फिर टाइम आएगा। He spoke earnestly at the meeting last night. He spoke, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। कैसे बोल रहा था, अर्नेस्टली, व्हाट मैनर, अर्नेस्टली, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। एट द मीटिंग, कहां पे, व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस, एट द मीटिंग, ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। लास्ट नाइट, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एमपीटी, ओके। सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन क्या होती है, ठीक है। सो ये देखते हैं कि ये बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होगी अगर वर्ब इज ऑफ वन वर्ड, लाइक हिज वाइफ नेवर कुक्स,
राइट। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? हिज वाइफ। वर्ब क्या है? कुक्स। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, राइट। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेवर, तो ये कहां प्लेस है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। इस सेंटेंस में पढ़िए, ही हैज नेवर सीन अ टाइगर, राइट। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? ही। मेन वर्ब क्या है? हैज इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। सो यू विल नॉट कंसिडर दिस एज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? सीन। ही हैज नेवर सीन अ टाइगर, तो नेवर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। आई हैव ऑफन टोल्ड हिम टू राइट नीटली, राइट। तो यहां पे क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई हैव टोल्ड। टोल्ड हमारा वर्ब हो गया, और इसके बीच में हमारा ऑफन, ऑफन फ्रीक्वेंसी हो गई, ओके। वी सब्जेक्ट यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट 8, सो हैविंग ब्रेकफास्ट हमारा एक वर्ब फ्रेज हो गया। यूजुअली बिकम्स द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो माय अंकल हैज गॉन आउट, ये हमारा माय अंकल सब्जेक्ट हो गया, गॉन वर्ब हो गया। जस्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। आई क्वाइट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई सब्जेक्ट, अग्री वर्ब। तो हमारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, दे आर प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, ओके। अगर वर्ब am, are, is, was है, right? So these adverbs are placed after, then the adverbs are placed after the verb. Am, are, is, was हमारे be verb, जो हमारा verb be होता है, infinitive होता है, उसी के वेरिएंट्स है। तो अगर हमारे सेंटेंस में ये verb हैं, तो हमारा adverb जो है वो हमेशा उनके बाद में ही प्लेस होगा, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है। I am never late, am के बाद हो गया, राइट। और एक और चीज आप देखेंगे कि नेवर भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो जैसा पिछला रूल था, वहां इस वाले में भी देखेंगे कि पिछला रूल भी लग रहा है। आई एम, आई हमारा सब्जेक्ट है, और लेट हमारा जो है वो वर्ब है, मेन वर्ब है, राइट। इस चीज का ध्यान रखिएगा, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि हमें मेन वर्ब को देखना है। तो अगर हम कहते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, तो आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। बाकी एम और ये सब आपको मालूम है कि ये ऑक्सिलरीज होते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, दे आर नॉट द मेन वर्ब्स। बट एक रूल हमने और बना लिया, और हमने ये देखा कि ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी लगा है सब्जेक्ट के बाद, तो उस ऑक्सिलरी के बाद ही हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा। ही इज, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ऑलवेज एट होम ऑन संडेज, वी आर जस्ट ऑफ, एडवर्ब, ठीक है। ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफ मतलब जस्ट निकलने ही वाले हैं। These adverbs are usually put before an auxiliary or the single verb be, right, when it is stressed. So these verbs, here we are talking about these adverbs, the adverbs of frequencies, right. तो यहां पे हमने देखा कि जब हम ये वर्ब बी के वेरिएंट्स यूज कर रहे थे, लाइक एम, इज, आर, तो हम यहाँ पे एडवर्ब्स जो हैं ऑफ फ्रीक्वेंसी
वो इनके बात करते थे। पर यहां पे हम जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं वो इनके पहले यानी बी या सिंगल वर्ब के पहले करेंगे। किस केस में? जब सेंटेंस में एक स्ट्रेस होगा कि एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि किसी बात को बड़े फोर्सफुली कहना। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पढ़िए, अब्दुल हैज कम लेट अगेन, राइट। ये एक तरह से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है। अब यहां पे स्ट्रेस हो रहा है, देखिए ध्यान से, स्ट्रेस, यस ही ऑलवेज डज कम लेट। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ कि हमारा ऑलवेज जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इस डज के, यानी ये एडवर्ब हमारा, ठीक, और ये डज जो हमारा बी वर्ब है, बी वर्ब का एक वेरिएंट है, उसके पहले आ गया। किन सेंटेंस में? जिसमें एक स्ट्रेस किया, यस ही डज कम और ही ऑलवेज डज कम लेट। When will you write the essay? क्वेश्चन पूछा है, बट आई हैव ऑलरेडी, मतलब मैंने पहले ही लिख लिया, आई हैव ऑलरेडी, बट आई ऑलरेडी हैव रिटन इट, आई ऑलरेडी हैव इट, बट आई ऑलरेडी हैव रिटन इट। तो यहां पे हमने क्या देखा कि हमारा हैव जो है वो वर्ब, बी वर्ब वेरिएंट है, और ये ऑलरेडी जो है हमारा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये इसके पहले प्लेस हो गया, यहां ऑलवेज इसके पहले प्लेस हो गया उन सेंटेंसेस में जहां पे हम स्ट्रेस देके बोलते हैं। विल यू बी फ्री ऑन संडे? आई यूजुअली एम। ठीक है, अब एम से पहले यूजुअली लग गया, आई यूजुअली एम फ्री ऑन संडेज। लेकिन आप देखेंगे कि हम बोलचाल की भाषा में, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश में, हम इसको रिवर्स में भी बोलते हैं, आई एम यूजुअली फ्री ऑन संडे, या बट आई हैव ऑलरेडी रिटन इट, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट। बट एक्चुअली जब हमारी रिटन इंग्लिश होगी तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि जहां पे हमारे सेंटेंस में स्ट्रेस होगा आएगा, वहां एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो बी और बी वेरिएंट के वर्ब से पहले प्लेस्ड होगा, राइट। डू यू ईट मीट? यस आई समटाइम्स डू, राइट। आई समटाइम्स हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डू हमारा बी वर्ब का वेरिएंट, ओके। The auxiliaries have to and used to, ये जो auxiliary verbs हैं have to and used to, they prefer adverb in front of, like ये have to हमारा एक auxiliary है, यहाँ used to है, तो हमारा जो adverb होगा वो पहले आ जाएगा। I often have to go to college on foot, I always used to agree with me। ये रूल्स हैं, प्लीज इनको आपको थोड़ा सा मेमोराइज रखना पड़ेगा, देन दे विल हेल्प यू इन योर प्रैक्टिस और एनी एक्सरसाइज और एनी टेस्ट पेपर, राइट। व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अ वर्ब और अनदर एडवर्ब, ये हमारा एक बेसिक लॉ है कि वो एडवर्ब जब मॉडिफाई करता है या उसको क्वालिफाई करता है तो वो उसके पहले आता है, राइट। तो यहां पे रामा इज रादर अ लेजी बॉय, द डॉग वॉज क्वाइट डेड, राइट। यहां पे क्या है? रादर लेजी, ये हमारा एडवर्ब लेजी के पहले आ गया, रादर। ही वॉज क्वाइट डेड, उसका स्टेट क्या था, राइट, क्वाइट डेड, मतलब एक हमारे उसको वर्ब को पॉइंट करा। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, डू नॉट स्पीक सो फास्ट, राइट। तो सो
ये हमारा एडवर्ब हो गया। फास्ट हमारा एक जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, डू नॉट स्पीक सो फास्ट, राइट। तो यहाँ पे हम ये बड़ा कॉमन सा हमारा रूल है विच वी ऑल जनरली नो। As a general rule, the word only should be placed immediately before the word. Only जब भी हम यूज करेंगे, again I would say that in spoken English हम इंटरचेंज कर देते हैं, हम पहले बाद में only बोल देते हैं, लेकिन यहां पे हम कहेंगे I worked only 2 sums. I worked 2 sums only, right? ये हम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा जो हमारे रिटन में है, रिटन इंग्लिश में है, वो ओनली वर्ड हमेशा पहले आएगा, द वर्ड इट मॉडिफाइज, बी इट अ वर्ब, एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। ही हैज स्लेप्ट ओनली 3 hours, राइट। तो ये जो हमारे न्यूमरल्स हैं जनरली हम देखेंगे तो ओनली वर्ड उनके पहले आएगा, राइट। या ओनली अगर लगा है तो दैट ओनली adverb will come before the word that it qualifies, right? I only worked 2 sums, ये हम spoken English में I only worked 2 sums बोल देते हैं, but this is the correct form, okay? यहां पे हम कुछ एडवर्ब्स पिकअप करेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपने यूजेज में हमें कंफ्यूज करते हैं। तो कौन सा एडवर्ब किस तरह से यूज होगा हम यहां पे इसको देखेंगे। लाइक टू मीन्स मतलब अधिकार, टू मच, राइट, मोर देन इट इज रिक्वायर्ड। तो यहां पे देखते हैं कि जनरली द यूज ऑफ टू इज जनरली विथ अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स। अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स जो कि मतलब एक तरह से नेगेटिव मीनिंग दे रहे हो, उनके साथ हम टू यूज करते हैं। लाइक टू बैड, टू नॉटी, टू विकेड, टू डल, राइट। So it is not proper to say here, see यहां पे ये it is not proper to say too glad या too happy। क्यों? क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, और स्पोकन इंग्लिश में हम कभी कहते भी आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, पर उसका एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू मीट यू which I should not be, okay? तो मैं बहुत खुश तो हूं तुमसे मिलकर, लेकिन मुझे उतना खुश नहीं होना चाहिए। So I am too glad to meet you is not correct। तो हम जो pleasant adjectives होते हैं उनके साथ to नहीं लगाते हैं। So the correct form क्या है? I am very glad to meet you। This is the correct sentence। I am very glad to meet you, right? Two pleasant adjectives can be used after to यहां पे, लेकिन यहां पे भी हम देखेंगे he is too clever to be caught red-handed। यहां पे सेंटेंस में तो हमें एक लग रहा है कि हम एक पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, बट एक्चुअली द मीनिंग इफ यू थिंक इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन। ही इज टू क्लेवर टू बी कॉट, बहुत चालाक है, वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो एक्चुअली हम टॉन्ट कर रहे हैं, बहुत चालाक है, वो पकड़ा नहीं जाएगा, राइट। दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। हम कहते हैं ना कि किसी ने कुछ हमें बताया तो हम उसको बड़े ही एक उस भाव से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मुझे हजम नहीं हो रही है तुम्हारी बात, तो दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, मैं नहीं मानता ऐसा हो जाए, राइट। तो अगेन हियर हमारा ये जो रूल है कि टू जो है हम ये जनरली एक पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के साथ नहीं लगाते हैं, उनके साथ हम वेरी लगाते हैं, ओके।
मच टू जो है वो भी हम देखते हैं कि कुछ अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ ही जाता है, जैसे मच टू पेनफुल या मच टू केयरलेस, मच टू विकेड। ओके, इसी को ध्यान रखिएगा कि मच टू जो है वो इट गोज विथ अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स एंड टू मच गोज विथ अ नाउन। ओके, टू मच गोज विद अ नाउन, too much carelessness, too much pain, right? लेकिन much to जाएगा unpleasant adjectives के साथ। ओके, प्रॉब्लम्स कहां आती हैं कि जब हम उनको इंटरचेंज कर देते हैं, लाइक विजय's failure is too much painful for me, too much painful, painful क्या है? एडजेक्टिव है, राइट? तो एडजेक्टिव के साथ हम क्या यूज करेंगे? मच टू। ठीक, तो विजय's फेलियर इज मच टू पेनफुल फॉर मी, टू मच नहीं। हमारा पे यहां पे कहां यूज हो सकता है हमारा कि लाइक रूड बिहेवियर गिव्स मच टू पेन टू हिम। अब यहां पे मच टू पेन किस लिए गलत हो जाएगा? क्योंकि पेन इज अ नाउन एंड मच टू विल बी यूज्ड विद एन एडजेक्टिव, राइट? सो हर रूड बिहेवियर गिव्स टू मच पेन टू हिम, राइट? मच टू की यहां पे हम नाउन के साथ टू मच लगाएंगे और अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ हम मच टू लगाएंगे। ओके, only two means very much, very, it's used with both pleasant and unpleasant words, right? I'm only too happy to receive the invitation, I'm only too happy, pleasant word है, ठीक? या I am very happy, I'm only too happy भी बोल सकते हैं या I am वेरी हैप्पी भी बोल सकते हैं। और परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज इज ओनली टू बैड, अनप्लेजेंट हो गया, लेकिन हम अनप्लेजेंट के साथ ओनली टू यूज कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं और परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज इज वेरी बैड। ओके, सो वेरी इज ऑल्सो यूज्ड विद बोथ प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट। द सीनरी इज वेरी ब्यूटिफुल या द क्वीन इज वेरी अगली। ओके, अब सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन वेरी एंड मच, तो यहां हम देखेंगे कि वेरी जो है वो पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है ज्यादातर। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी, वेरी ऑनेस्ट। मच क्या होता है? वो केवल मच की बात करें, मच टू या टू मच की नहीं। मच जो है वो हम कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरिजन में यूज करते हैं। much better, much luckier. So the construction very much plus comparative is also used, very much better, ठीक है? very much wiser, very much and wiser, very much better, very much luckier, right? Very and much can be used for the superlative degree, the very best athlete, मच द बेस्ट बॉय। यहां पे क्या हो गया? हम सुपरलेटिव डिग्री हो गया, राइट? और यहां पे हमने मच जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी यूज कर लिया, राइट? मच और वेरी दे कैन बी यूज विद कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब यहां पे देखेंगे कि वेरी इज जनरली यूज बिफोर अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग, एंजॉइंग, चैलेंजिंग, ना इंग फॉर्म। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एंजॉइंग, वेरी अमेजिंग, राइट? लेकिन मच इज जनरली यूज विद द
पास्ट पार्टिसिपल, मच अमेज्ड, मच सरप्राइज्ड, मच प्रिविलेज्ड, राइट। मच इंटरेस्टिंग नहीं होता है, तो इट्स लाइक much interested. Here very is used with the present participle and much is being used with the past participle. Much interested but very interesting, right? However, very can be used with the past participle. हम use कर सकते हैं very, I am very pleased to meet you, I am very tired of walking, right? तो but generally हम much के साथ देखेंगे एक कंस्ट्रेंट है कि दिस इज नॉट यूजुअली यूज्ड विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल। इनफ, सो व्हेन इनफ इज यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, राइट, इट इज यूज्ड एग्जैक्टली आफ्टर द वर्ड्स गुड इनफ, दिस इज गुड इनफ, या दिस इज नॉट गुड इनफ, शी इज इंटेलिजेंट इनफ to guess my hint, he is fast enough। तो हम देखेंगे कि हमारे यहां पे जो एडजेक्टिव्स हैं उसके बाद ये यूज हो रहा है इनफ। he is enough intelligent will not sound right, he ran enough fast, नहीं। enough जब आएगा तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर सेंटेंस में है, राइट, तो उसमें इनफ हमेशा उस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद में प्लेस होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां आती है कि जब हम इनफ को एडजेक्टिव और वर्ब के बिफोर पहले यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि ही इज इनफ लकी टू गेट अ लॉटरी प्राइज, तो ये सही नहीं है। He is lucky enough to get the prize, okay? Because हमारा adjective of quality को enough जो है as an adverb वो जब define करेगा तो उस sentence में उसके बाद में placed होगा, right? और दूसरा है कि enough को जब हम comparative या superlative degree में, अब positive degree में तो use होता है, ठीक है, इन पॉजिटिव डिग्री इट इज यूज, बट सुपरलेटिव या कंपैरेटिव में यूज नहीं करते हैं। द जज इज ग्रेटर इनफ टू पार्डन योर ऑफेंस, दिस इज रॉन्ग। ही इज यंगेस्ट इनफ टू गेन एंट्री, दिस इज रॉन्ग, राइट। यहां पे लिखेंगे ही इज यंग इनफ, तो पॉजिटिव डिग्री में करेक्ट है, ही इज यंग इनफ टू गेन एंट्री, बट हम कहें ही इज यंगेस्ट इनफ, तो दैट इज रॉन्ग, ओके। अगो, ये हमारा फिर वही पास्ट टेंस में हमारा अगो यूज होगा। तो whenever there is a usage of word ago with any time expression, it means the sentence is past indefinite or simple past, सिंपल पास्ट टेंस में यूज हो जाएगा, ठीक है। लाइक शी केम अ मंथ अगो टू लिव इन माई बिल्डिंग, शी केम, सिंपल पास्ट टेंस, राइट। तो यहां पे हमारे इस अगो में मंथ अगो अगर लगेगा तो हमारा सेंटेंस एक सिंपल पास्ट टेंस में होगा। प्रॉब्लम कहां आती है? जब हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट यूज करने लगते हैं सेंटेंस में, हैव लगाएंगे या हैड लगा देंगे, अगो यूज करेंगे और हैव हैड लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। रवि हैज कम अ मंथ अगो टू सी मी, नो, वी विल नॉट यूज द प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैड सीन मेरी अ वीक अगो, पास्ट परफेक्ट, गलत। हम यहां पहले में यूज नॉर्मल केम, राइट, सिंपल पास्ट, ही रवि केम अ मंथ अगो टू सी मी। सेकेंड में यूज सॉ, आई सॉ मेरी, हम पास्ट नहीं लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट नहीं लगाएंगे, हैड सीन मेरी नहीं, आई सॉ मेरी अ वीक अगो। तो ये एक आपके लिए ट्रिगर होना चाहिए कि अगर सेंटेंस में अगो लिखा हुआ है टाइम के साथ, एक
टाइम वेरिएंट के साथ अगो लिखा है, तो वहां पे सेंटेंस जो होगा वो सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस वर्ब्स को यूज करें, राइट? केम, सॉ, ओके। इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब्स। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है कि हम जो ऑर्डर था सेंटेंस का उसको पलट देते हैं। जैसे हमारा जनरल ऑर्डर एक सेंटेंस का शुरू होता है कि वर्ब से शुरू होता है। ही केम टू द शॉप विदाउट इन्फॉर्मिंग। तो अब हम अगर हम इसको उसके ऑर्डर को पलट देंगे तो हमारा सेंटेंस का इन्वर्जन हो जाता है, वो चाहे इन्वर्जन वर्ब का हो चाहे एडवर्ब का हो। यहां पे हम एडवर्ब का देखेंगे कि हार्डली हैड शी गॉन आउट व्हेन हर मदर अराइव्ड। यहां पे हमने एक इन्वर्जन में देखा कि हमने एडवर्ब को पहले सेंटेंस में स्टार्ट कर दिया। Hardly had she gone out when her mother arrived, right? So had is acting as a verb before the subject, right? यहां पे verb जो है हमारा had जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। सब्जेक्ट क्या है? she। किसके बारे में बात हो रही है? she के बारे में ना। और हमारा verb जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया और उस verb को फर्दर क्वालिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब हार्डली हैड शी। तो यहां पे इन्वर्जन कहते हैं, हमारा एक इन्वर्जन हो गया, समझे? सो एक्टिंग एज अ वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट शी, देयरफॉर हियर एन इन्वर्जन टेक्स प्लेस। ठीक। यूजेस ऑफ इन्वर्जन क्या है? तो यूजेस है कि हम कई बार हमारे सेंटेंसेस को ऐसे स्टार्ट कर देते हैं कि लाइक सेल्डम do they come home, never did I see such a movie, or never have I seen such a movie, hardly had she gone her mother arrived। so इस तरह से हम देखेंगे कि इन्वर्जन में हमारा वर्ब पहले आ जाता है और यहां इस केसेस में हमारे एडवर्ब जो हैं वो दे आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। तो प्रॉब्लम कहां आती है? ऐसे में हार्डली हैड शी गॉन आउट व्हेन हर मदर केम। प्रॉब्लम इन्वर्जन में कहां आती है? जब हम हेल्पिंग और या ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम सब्जेक्ट से पहले लिखना भूल जाते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है हैड, राइट? और ये हमारे सब्जेक्ट के पहले लिखा हुआ है, राइट? यदि हम इस ऑक्सिलरी वर्ब को लिखना भूल जाएं तो प्रॉब्लम अकर करेगी, ठीक है? सो वी हैव टू रिमेंबर दैट इन इन्वर्जन हमारा हेल्पिंग वर्ब और हमारा ऑक्सिलरी वर्ब शुड कम बिफोर द सब्जेक्ट, इट शुड बी देयर, राइट? यहां पे नो सूनर द प्लेयर स्कोर्ड द गोल द टीम सेलिब्रेटेड, राइट? नो सूनर द प्लेयर, राइट? तो यहां पे हमारा इन्वर्जन शुरू हो गया। नो सूनर ये हमारा एडवर्ब हो गया जो कि हमारे वर्ब द प्लेयर स्कोर्ड द गोल, राइट? द टीम। अब यहां पे बात किसकी हो रही है? एक्चुअली पूरे सेंटेंस में देखिए तो हमारी बात हम कर रहे हैं द टीम के बारे में, राइट? तो यहां पे नो सूनर द प्लेयर स्कोर्ड द गोल, ये पूरा हमारा वर्ब हो गया, राइट? नो सूनर द स्कोर्ड द गोल हमारा वर्ब हो गया और यहां पे सब्जेक्ट से पहले हमारा कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है, तो यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या होगा? नो सूनर द प्लेयर स्कोर्ड द गोल डिड द टीम सेलिब्रेट, डिड लग जाएगा, डिड द टीम सेलिब्रेटेड, ओके? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एन इन्वर्जन तो
हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना और सब्जेक्ट से पहले हमारे को ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जरूर रखना है, राइट। Seldom had I seen such a beautiful painting. हम ये नहीं कहेंगे, इट इज रॉन्ग टू से seldom I had, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम इन्वर्शन तो कर रहे हैं लेकिन हमारा had जो है वो आफ्टर द सब्जेक्ट आ रहा है। ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हमारा सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है। बट जब इन्वर्जन हो रहा है सेंटेंस में सेल्डम, तो यहां पे हमारे हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले ही आएगा। सेल्डम हैड आई सीन सच अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। ओनली बाय टेकिंग रिस्क शी सेव्ड हर चाइल्ड फ्रॉम फायर। इन्वर्जन हो रहा है, ओनली हम एडवर्ब को यूज कर रहे हैं। ओनली बाय टेकिंग रिस्क शी, अब शी सब्जेक्ट हो गया लेकिन शी के पहले कोई वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हमेशा हमने आइडेंटिफाई, इस सेंटेंस में हमने पहले क्या आइडेंटिफाई किया, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट शी है, इसके पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए था। तो ओनली बाय टेकिंग रिस्क did she save her child from fire. Okay. Only yesterday she called me. Only yesterday she called me में आप बताइए सब्जेक्ट क्या है, she। तो she के पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए, राइट। तो क्या होगा, only yesterday did she call me। समझ में आ रहा है? ओके। Under no circumstances will I visit him, राइट। यहां पे ये नहीं होगा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस आई विल विजिट हिम। आई सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, विल बाद में नहीं आएगा। किन केसेस में, क्योंकि ये इन्वर्जन फॉलो कर रहे हैं। इन्वर्जन सेंटेंसेस में हमें हमेशा इस तरह से स्टार्टिंग में वर्ड्स मिलेंगे। ओनली डिड ही डू, अनलेस यू डू दिस, हार्डली हैड शी डन दिस। तो जब कोई भी सेंटेंस इन वर्ब्स एडवर्ब्स के साथ स्टार्ट होता है तो हम उसमें पकड़ लेते हैं कि नाउ द इन्वर्जन हैज बीन अप्लाइड। और जब इन्वर्जन अप्लाई हो गया है तो हमारे सब्जेक्ट से पहले एक वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जरूर होना चाहिए। ओके। Inversion is used in sentences beginning with so plus adverb of। So politely, ठीक है, did he speak that all were impressed। तो हमारा ये स्टार्ट हुआ so politely, so plus adverb of manner। Politely is an adverb of manner। So politely he spoke, तो गलत हो जाता है हमारा, चूंकि इन्वर्जन फॉलो कर रहा है तो हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है विल कम बिफोर द सब्जेक्ट ही। सो पोलाइटली डिड ही स्पीक। ओके।